and today we are going to learn more about journal entries. Now today whatever problem I am going to show you is very critical in looks. दिखने को वो प्रॉब्लम बहुत बड़ा दिखेगा, तुम लोग देख के डरोगे, लेकिन जितना क्वेश्चन बड़ा उतना वो समझने में इजी रहता है, और जितना क्वेश्चन सीधा छोटा उतना वो समझने में और लिखने में बहुत डिफिकल्ट रहता है. So you don't bother for the size of the question what I'm going to show you, but you try to understand that. Be ready with your book and notebook, and here we go. So now I am showing you my screen, and then we will start with the journal entry. Okay, now can you all see my screen? Parth, you put your mic on. Yes, ma'am. Yes. So now this is the company which I have already explained you. The company you have to create. Write the heading on the top. It is Ask Company, Ask Electronics, and this is assignment number 1. Ask Electronics, and the financial year is 1st April 2010. Now here you have something which you don't know, accounts and inventory. So whatever you don't know, just forget with that. Then you have to create a company. In that, what groups you are supposed to give, that we already described before. Okay? So this assignment I am going to give you. Now, yesterday when you had come to BITE, we have already taught you about the cost center. So this is what you have to say. You have to create the cost center. Create primary cost category as division, and then create required cost centers under division as described in the transaction. So whatever cost centers are given, you have to create those cost centers. Any doubt till here? No. Yes. So all cash transactions should be routed through petty cash. Now see, in this account, in this company, in this example, you have two cash books. One is the main cash book and the other one is the petty cash book. Now you already know what is the difference between the main cash book and petty cash book. Petty cash book will have small entries. Day-to-day transactions will be routed through petty cash book, and big cash transactions will be routed through main cash book. So here they have clearly specified you have to route all the transactions through petty cash book. Clear? And bank transactions are to be routed through Bank of India. Name of the bank they have already given. Yes? So now see the first entry. It is cash withdraw. So now when you have created a company, it is the cash and the cash account, cash in hand and profit and loss account will be already there. Then these ledgers are already given. You have to create these ledgers. You have to give these opening balances. Any doubt till here? Yes. Then according to the requirement, you will be creating again the ledgers. So now the date over here, you will write it in the date column is 2/4. 2/4/20. What is the type of voucher? Cash withdraw. Means what is the type of voucher? Now all of you have to say fatafat all together. Contra. Yes. Now किसको डेबिट मिलेगा, किसको क्रेडिट मिलेगा, क्या बढ़ गया? कैश विड्रॉ क्या बढ़ गया? व्हाट इंक्रीज? कैश इंक्रीज. तो कैश को डेबिट मिलेगा. You have to give petty cash. You have to give petty cash. This ledger you have to open. Petty cash तुमको खोलना पड़ेगा. उसका ग्रुप क्या रहेगा? Cash in hand. हाँ, cash in hand. जो खोलना पड़ेगा, that I'll be giving you over here. So debit is petty cash. Credit किसको मिलेगा? बैंक ऑफ इंडिया. बैंक ऑफ इंडिया का ग्रुप क्या देंगे? बैंक अकाउंट. शायद ऊपर रहेगा petty cash. See, it is already there. So you're not creating again. You're not creating again.
अगर तुम लोग वहां पे क्रिएट करने जाओगे तो इट विल शो यू एन एरर डुप्लीकेट एंट्री मीन्स दैट शोज कि you already have that ledger. Okay, now you have to see whether you have Bank of India. ढूंढो ढूंढो, बैंक ऑफ इंडिया है क्या? बैंक ऑफ इंडिया है. The opening balance is 2,30,000. So that also you are not creating. Okay. So Bank of India and the amount is 25,000. Contra petty cash debited and Bank of India credit and the amount is 25,000. Okay, next is cash sales. So Santosh, what is the type of voucher? Date लिखो. Type of voucher बोलो. Type of voucher receipts. Then क्या बढ़ गया? तो कैश को क्या देंगे? डेबिट. तो पेटी कैश. पेटी कैश को डेबिट. क्रेडिट किसको देंगे? हाँ, मिस्टर केलकर. यस, तो मिस्टर केलकर. मिस्टर केलकर कौन है? सेंट्री. हमको पैसा दे रहा है वो. ऊपर लिखो. The person who gives you money is debtor. Debtor gives and creditor takes. Debtor gives money and creditor takes money. तो केलकर कौन है? कंट्री debtor. Amount 15,000. Next. डेट क्या है? 3/4. टाइप ऑफ वाउचर बोलो. परचेज. So what is the type of voucher? पेमेंट. क्या है? कौन से दो लेजर्स है? कैश है एंड कैश है और क्या है? स्टेशनरी है. हाँ, एक्सेल को तुम लोग नहीं पकड़ोगे क्योंकि जब भी कैश है तो दैट टाइम यू हैव स्टेशनरी एंड एक्सेल. यू विल ओमिट एक्सेल. यू विल कंसिडर ओनली स्टेशनरी. तो पेमेंट है. अभी किसको डेबिट देंगे? क्यों? स्टेशनरी को क्यों डेबिट? बोलो फटाफट. Stationery is the expenses. Expenses has got debit balance. Very good. चलो आगे. Purchase of office interior material. कैश वहां पे नहीं आएगा. पेटी कैश. पेटी कैश ही आएगा. हाँ. Next date is 5/4. पार्थ, मी तुला जे टॅली 7 दिलं त्याला पण डेट नाहीये. नाही, ते एज्युकेशन मोड मध्ये चालतंय. अशी माहिती तर तू हा क्वेश्चन आहे ना, तू विदाउट डेट करूच शकणार नाही. कारण एवढे वाउचर्स आहेत ना, तुला चेकिंग करायला वगैरे जाम प्रॉब्लेम येणार. आता आपण आपलं हे लेक्चर झालं ना की आपण थोडं R&D करूया आणि मी परत तुला दुसरं कुठलं व्हर्जन पाठवते. कारण आम्ही टॅली 9 2 वर्षापूर्वी विकत घेतलं. मे बी 3 वर्षापूर्वी. त्याच्या आधी आमचं टॅली 7च चालतंय. अच्छा.
त्यामुळे तो एज्युकेशन मोड वगैरे त्यांनी विचारलंच नाही हा बोल तुला. नाही अजून ते बोलत नाहीत पण एक्झॅक्ट टाईल 9 मध्ये एज्युकेशन मोड कसं होतं तसंच चालतंय. ठीक आहे तुम्हाला मग तुझं टीम पेपर दे. ओके. So it is 5-4 and then purchase of office interior material. बोलो what is the type of voucher? हाँ परचेज है तो पेमेंट डेबिट किसको देंगे? 5-4 210 ना. ऊपर क्या है 220 था नहीं, सब जगह में 210 ही है. मैंने 20 डाला. अरे हाँ रे 5-4 20 है. नहीं मैंने डाला है वो, मेरा गलती है. 10 ही है सब जगह में. हाँ पेमेंट है. चलो आगे. ऑफिस मटेरियल. ऑफिस इंटीरियर. ऑफिस मटेरियल. हाँ इंटीरियर. ऑफिस इंटीरियर डेबिट. क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंसेस है. क्रेडिट किसको? कैश को. गीता बोलो क्यों? हाँ कैश इज एसेट. आगे. हाँ कैश कम हो गया इसके लिए उसको देंगे क्रेडिट. देन परचेज ऑफ ऑफिस क्लीनिंग मटेरियल. बोलो वाउचर बोलो. संतोष. डेट 8/4. अभी जितना ऊपर हुआ ना कहीं पे भी उन्होंने कॉस्ट सेंटर नहीं बोला है अभी तक. कहीं पे भी कॉस्ट सेंटर नहीं बोला है अभी तक. हाँ 8/4 बोलो. टाइप ऑफ वाउचर परचेज पेमेंट डेबिट. हाँ ऑफिस क्लीनिंग. हाँ और क्रेडिट पेटी कैश. अमाउंट 7,000. X 5-4 ट्रैवलिंग एडवांस पेड. एक ही जैसे. हाँ डेट चलता है ना. एक दिन तो ट्रांजेक्शन कर सकता है. लाइक संतोष का क्वेश्चन क्या था? एक वाउचर को दो वाउचर को सेम डे. एक्चुअली वाउचर इज वो दिन में जितने ट्रांजेक्शन हो गए तो तुम्हारे पास वो दिन में 50 बार पैसे आए होंगे और तुमने 100 बार पेमेंट किया होगा तो 150 ट्रांजेक्शन हो गए. तो यू विल हैव 150 ट्रांजेक्शन on the same day. 150 vouchers on the same day. Clear? बोलो type of voucher payment. हाँ debit. हाँ ट्रैवलिंग एडवांस है वो. ट्रैवलिंग एडवांस. इसका ग्रुप क्या आएगा? नहीं एडवांस एक्सपेंसेस नहीं रहता. एंड ट्रैवलिंग एडवांस का मतलब क्या? अभी तू मेरे इधर काम करता है तो मैं तुमको हफ्ते भर का दूंगी 1,000 रुपया. संतोष आज तेरे को अलीबाग जाना है, कल तुमको मुंबई जाना है, कल तो तुमको पेन जाना है, तो ये ट्रैवलिंग का पैसा. फिर एंड ऑफ द वीक में तू मुझे हिसाब देगा. तो मैंने तुमको 1,000 रुपया एडवांस दिया लेकिन एक्चुअली तेरा खर्चा 500 रुपया ही हो गया तो तू 500 रुपया मुझे रिटर्न देना है. तो जब भी एडवांस देते हैं तो वो करंट एसेट में आता है. करंट एसेट ट्रैवलिंग एडवांस हो गया. फिर नेक्स्ट क्या हो गया? पेटी कैश. अमाउंट बोलो. 7,000. आगे make a provision. Can you see now? Make a provision. So जब भी you will see
दिस वर्ड मेक अ प्रोविजन। तो अभी यहाँ पे कॉस्ट सेंटर है, हाँ? अभी पहली बार कॉस्ट सेंटर आया, हाँ? तो ये तुम लोग को कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने हैं। चलो अभी मेक अ प्रोविजन मीन्स व्हाट इज द टाइप ऑफ वाउचर। ये एंड ऑफ द अप्रैल मंथ है, तो 34 ये डेट आएगा। टाइप ऑफ वाउचर बोलो। वेरी गुड, जर्नल एंट्री। एक प्रोविजन है, ना किधर पेड दिया है ना किधर रिसीव दिया है, तो जर्नल एंट्री। अभी डेबिट किसको देंगे? कौन से वाउचर तुमको दिख रहा है? सैलरी दिख रहा है, सैलरी पेएबल दिख रहा है, बस एक ही दिखता है, बाकी बाकी तो कुछ दिखता ही नहीं है। तो वो एक में ही दोनों मौजूद है। वन लेजर which will affect is salary ledger and the other one is the salary payable ledger। तो डेबिट आएगा सैलरी को, फिर सैलरी का ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर एक्सपेंसेस हैज गॉट डेबिट बैलेंस, सैलरी को डेबिट मिल गया। देन क्रेडिट किसको आएगा? सैलरी पेएबल। सैलरी पेएबल का ग्रुप क्या आएगा बोलो? सैलरी मुझे देना है बाबा, मेरे सर पे बोझ है, तो बोझ किसका रहता है? करंट लायबिलिटी। हाँ, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी बोझ रहता है हमारे सर पे लोन का, तो ये लोन रहता है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, ठीक है। अमाउंट कितना आएगा? 1,60,000। तुम लोग अमाउंट डालो कि 1,60,000। उसके बाद फिर वो कॉस्ट सेंटर तुम लोग को पहले ही क्रिएट करके रखना है, एंड तीनों कॉस्ट सेंटर को वो अमाउंट जो दिया है वो अमाउंट डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे यू हैव टू क्रिएट कॉस्ट सेंटर। लिख के रखो वहां पे, ठीक है। ये क्लियर हो गया? देखने को एंट्री कैसे दिखता है? डर लगता है ना एंट्री देख के? डरना मना है। कॉस्ट सेंटर्स कितने हैं? देखो 5 कॉस्ट सेंटर्स है। हाँ, अमाउंट क्या? हाँ, वो ब्रेक हो गया ना, तो मैं उसको डिवाइड कर। चलो अभी डाउट है कुछ? ठीक है। कौन सा अमाउंट देखते हैं? 1,60,000। सबको कितना कितना देना है क्या? प्रोडक्शन को 45, फिनांस को 30, मार्केटिंग को 35, फिर एडमिन को 35, परचेस को 15। Next, check received from Mahesh Corporation. Amount, date 28/4. Type of voucher, receipt. बोलो। चेक है तो कैश है या बैंक है? कौन सी बैंक है? बैंक ऑफ इंडिया। और उसको और डेबिट क्रेडिट किसको देंगे? महेश कॉर्पोरेशन। महेश कौन हो गया? वो हमको पैसा दे रहा है। हाँ, सन्ड्री डेटर। अमाउंट कितना है? 1,40,000।
ओके, नेक्स्ट डाउट है कुछ? वहां पे भी कॉस्ट सेंटर कुछ नहीं दिया है ना, रिसीट को तो कभी कॉस्ट सेंटर नहीं रहता। नेक्स्ट, ऑफिस रेंट पेड, डेट इज 34। हाँ, व्हाट इज द टाइप ऑफ वाउचर? पेमेंट। तो डेबिट किसको? रेंट को। ऑफिस रेंट को डेबिट, क्रेडिट किसको? चेक है, चेक है, तो BOI, बैंक ऑफ इंडिया, अमाउंट 35,000। ऑफिस रेंट का ग्रुप बोलो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, सर्विस चार्ज, परचेस, टाइप ऑफ वाउचर, परचेस, बोलो जोर से। पेमेंट, डेबिट किसको? डेबिट किसको? हाँ, वेट 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 वेट, परचेस ऑफ स्पेयर पार्ट्स ऑन क्रेडिट, पूरा पढ़ो, ऑन क्रेडिट। फिर कौन सा दो लेजर है? स्पेयर पार्ट। हाँ, जर्नल। फ्रॉम शाह कंपनी, इतना आएगा, बराबर है, ये अपने काम का है। तो द टाइप ऑफ वाउचर इज जर्नल। देन डेबिट, डेबिट बोलो। शाह कौन है? शाह से हम परचेज कर रहे हैं, तो वो कौन है? सन्ड्री। देखो ऊपर का ऊपर रूल क्या है? जब मैंने ना बोला तो तू उल्टा ही बोलेगी ना। पैसे देने का है ना। हाँ, सन्ड्री, डेटर से पैसा देना है। देखो क्या लिखा है तूने, यू हैव टू गिव हिम मनी। ऊपर के लाइन में क्या लिखा तूने? नहीं नहीं नहीं, तूने उल्टा लिखा। तूने क्या लिखा? हाँ हाँ, टेक क्रेडिटर ना। हाँ बराबर है, मैंने ऐसे ही बोला है। तूने क्या लिखा है उल्टा पुल्टा? गिव सन्ड्री डेटर एंड टेक क्रेडिटर। हाँ, तो अभी परचेज किया उसके पास से, तो उसने पैसा अभी नहीं लिया, लेकिन बाद में लेने वाला है ना, मुफ्त में देने वाला है क्या? या चने के अगेंस्ट देगा या चिंचोके के अगेंस्ट देगा, नहीं उसको पैसा तो देना ही पड़ेगा। तो वो शाह कौन हो गया? क्रेडिटर। तो डेबिट किसको मिलेगा? स्पेयर पार्ट्स। स्पेयर पार्ट्स का ग्रुप बोलो। हाँ, सॉरी सन्ड्री एसेट्स से लिखा है, करंट एसेट्स, यूज्ड टू स्पेयर पार्ट्स, करंट एसेट्स। हाँ, फिर क्रेडिट किसको देंगे अभी? शाह को, क्योंकि वो कौन है? सन्ड्री क्रेडिटर्स है। अमाउंट कितना है दिया है? 10,500। और उसका कॉस्ट है, हाँ एक मिनट है, एक मिनट। अभी देखो उसने कॉस्ट सेंटर दिया है प्रोडक्शन, यानी हम लोग स्पेयर पार्ट्स को करंट एसेट नहीं दे सकते, हमको स्पेयर पार्ट्स को परचेज देना पड़ेगा।
समझा? कॉस्ट सेंटर दिया है प्रोडक्शन, इसका मतलब हम लोग उसको प्रोडक्शन में स्पेयर पार्ट्स यूज करने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, हमने जो करंट असेट लिखा था वही सही है। करंट असेट्स हमने स्पेयर पार्ट्स खरीद किए हैं मशीनरी से, वो करंट असेट में जाएंगे और उसका कॉस्ट सेंटर प्रोडक्शन, सही है, बराबर है। चलो नेक्स्ट 15(4) टाइप ऑफ वाउचर बोलो। कैश सेल, कैश सेल रिसिप्ट। डेबिट किसको? पेटी कैश। क्रेडिट किसको? हाँ, अमाउंट कितना है? 19,900। नेक्स्ट परचेज ऑफ इंस्टेंट टी कॉफी 18/5। डेट बोलो। पेमेंट ऑन कैश है ना? पेमेंट डेबिट। किसको डेबिट मिलेगा? रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, बराबर। इंस्टेंट टी कॉफी दिया तो भी चलेगा। क्रेडिट किसको? कैश को। अभी आने लगा ना संतोष? इजी है ना? अभी कुछ काम करेंगे तो इजी है। पेड चार्जेस पेड वाया कैश, बोलो। टाइप ऑफ वाउचर, पेमेंट। डेट लिखो पहले, 21 मई। टाइप ऑफ वाउचर, पेमेंट। डेबिट क्या? ट्रेड चार्जेस, indirect expenses, freight charges, credit किसको? कैश, बिकॉज कैश रिड्यूस हो गई, पेटी कैश। कॉस्ट सेंटर दिया है, यस 21,000, सॉरी 650, 650। कैश डिपॉजिटेड, बोलो। कॉन्ट्रा एंट्री 22/5। कॉन्ट्रा बोलो। डेबिट किसको देंगे? हाँ, बैंक ऑफ इंडिया को डेबिट। क्रेडिट किसको देंगे? कैश। अमाउंट 10,000। नेक्स्ट पेमेंट मेड, डेट बोलो 18/4। टाइप ऑफ वाउचर बोलो। हाँ हाँ, तो पहले वाला डेट डालेंगे, ये दूसरा जो डेट है वो बैंक रिकंसिलेशन का डेट है, 15/4। क्या आगे? टाइप ऑफ वाउचर,
क्यों? पेड है ना, पेमेंट मेड है, क्यों जर्नल? पेड है, सीधा सीधा पेमेंट। आगे बोलो। डेबिट किसको देंगे? हाँ, बैंक ला डेबिट दिलं तर बँक विल इन्क्रीज. नाही बँक इज हा. asset, asset has got debit balance. बँकला डेबिट दिलं तर बँक विल इन्क्रीज. सो सुरेंद्रला डेबिट, सुरेंद्रला डेबिट अँड बँकेला क्रेडिट. सुरेंद्र कौन है? संतोष बोलेगा. सुरेंद्र कौन है? सुरेंद्र, सुरेंद्र को वी आर गिविंग और वी आर टेकिंग फ्रॉम सुरेंद्र. कंट्री, कंट्री, कंट्री डेटर. कैसे? पेमेंट मेड, वो दे रहे हैं. हाँ, हम उसको दे रहे हैं. हाँ, तो नहीं, वापस तो रूल गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. डेटर गिव्स अस मनी, ऐसा है पूरा रूल लिख. डेटर गिव्स अस मनी, क्रेडिटर टेक्स मनी फ्रॉम अस. डेटर गिव्स मनी टू अस and creditor takes money from us. बराबर है? हाँ, तो गिव और टेक सिर्फ दो वर्ड लेगा तो उससे नहीं चलेगा. तो we give money to creditor and debtor gives us money. तो दोनों गिव हो रहा है, लेकिन गिव अलग है ना हमारा. एक हम दे रहे हैं और एक में वो दे रहा है. हाँ, तो इसके लिए पूरा सेंटेंस रेफर करो. We gives money to creditor and, तो इसके लिए गिव लो ही मत दोनों जगह में. एक जगह में गिव ले लो, एक जगह में टेक ले लो. डेटर गिव्स अस मनी एंड क्रेडिटर टेक्स मनी फ्रॉम अस. कभी हमने उसको पैसा दिया, यानी वो कौन है? कंट्री क्रेडिटर. और एक देखो, अब भी हमने उसको पैसा दिया, यानी उसका बैलेंस कम होगा कि ज्यादा होगा? सुरेंद्र ने हमको कभी तो कुछ क्रेडिट पे माल दिया होगा, तो उसका बैलेंस था हमारे पास 10,000. अभी हमने उसको दे दिया, कभी उसका बैलेंस बढ़ेगा या उसका बैलेंस कम हो जाएगा? कैसे बढ़ेगा? कम हो जाएगा ना, क्लोज हो गया ना उसका अकाउंट. हाँ, तो कम हो गया बैलेंस. तो कम हो गया तो उसको सैलरी क्रेडिटर है तो ही डेबिट दे के कम हो जाएगा. अगर वो डेटर है तो डेबिट दे के बढ़ेगा वापस. हाँ, सुरेंद्र सैलरी क्रेडिटर. नेक्स्ट, सर्विस चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक 35. बोलो टाइप ऑफ वाउचर. हाँ, बैंक ऑफ इंडिया. सुरेंद्र को डेबिट, बैंक ऑफ इंडिया को क्रेडिट. नेक्स्ट, सर्विस चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक. व्हाट इज द टाइप ऑफ वाउचर? हमारे बैंक अकाउंट से सर्विस चार्जेस कट हो गया. तो व्हाट इज द टाइप ऑफ वाउचर? रिसिप्ट या पेमेंट? हमको मिला तो पेमेंट. डेबिट किसको? डेबिट किसको? हाँ, बैंक चार्ज. क्यों बैंक चार्जेस को डेबिट क्यों?
Expenses has got debit balance. Direct expenses. क्रेडिट किसको? क्रेडिट किसको? पैसे कहाँ से कट हो गए हमारे? बैंक अकाउंट से। तो बैंक अकाउंट कम हो गया तो बैंक ऑफ इंडिया को क्रेडिट अमाउंट 350 बराबर। आगे अमाउंट पेड। बोलो संतोष। पेमेंट टाइप ऑफ डेट 12/7 देन तो डेबिट क्रेडिट किसको? बाय चेक तो बैंक ऑफ इंडिया अमाउंट माइनस नेक्स्ट कैश से कैंसिल टाइप ऑफ वाउचर रिसिप्ट। हेलो डेबिट किसको? कैश को डेबिट। क्रेडिट किसको? सेल को क्रेडिट अमाउंट जो भी दिया है। उद्या तू असेल, आई असेल, दादू असेल आणि स्वामी असेल आणि मिलिंद सगळ्यांनी एका वेळेला ऑनलाईन जाऊन तुझ्या ऍडमिशन कुठे कुठे घ्यायचं ते चर्चा करून फायनल करून टाका. परत कोण देणार नाही आणि वाट्याला गोंधळ नको. ओके. So it is 21/6 type of voucher amount paid. Now the things are very easy for you. Payment. Debit किसको? DSL. क्रेडिट किसको? हाँ? जेबी क्या बोली थी? बैंक. Amount 6,500. Next. Check received. बोलो टाइप ऑफ वाउचर. डेट क्या है? 20/5. चेक रिसीव्ड. हाँ ऊपर स्क्रॉल करो दिख रहा है ना बराबर. अच्छा ऊपर का रह गया तेरा लिखना. क्या dispatch type of voucher received check receipt. डेबिट किसको? चेक रिसीव्ड तो बैंक ऑफ इंडिया को डेबिट. फिर पेमेंट किसको? और क्रेडिट किसको? सागर. अभी सागर कौन हो गया? सागर हैज गिवन अस मनी.
sundry debtor. Amount 1,25,000. Advertisement expenses payable to so and so. While bill number so and so. बोलो टाइप ऑफ ऑर्डर बोलो. 28/6 पेमेंट आएगा. क्यों? किधर वर्ड है? पेड. पेड दिख रहा है किधर? तो जर्नल. डेबिट किसको? एडवर्टाइजमेंट को डेबिट. एडीवीटी उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया. क्रेडिट किसको? हाँ, कैश किधर है? जेबी है, कैश है ही नहीं. क्रेडिट किसको? हमको एडवर्टाइजमेंट पैसा देना है. किसको देना है? शक्ति एड. तो शक्ति एड को क्रेडिट. शक्ति एड कौन हो गया? क्रेडिटर. अमाउंट 27,000. अभी देखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेएबल. शक्ति एडवर्टाइज हमको पैसा, शक्ति एडवर्टाइज को हमको पैसा देना है. यानी उसका बैलेंस बढ़ गया ना. उसका पहला बिल है 5,000 का, फिर बिल है 27 का, फिर शायद और बिल होगा 10,000 का. तो उसका बैलेंस बढ़ता जाएगा, उसका अकाउंट बढ़ता जाएगा. तो सन्ड्री क्रेडिटर, तो उसको वापस क्रेडिट देंगे तो वो बढ़ गया. हाँ, नहीं डेबिट में कैसे आएगा? बढ़ना है ना. तो सन्ड्री क्रेडिटर ना, क्रेडिटर को बैलेंस कौन सा रहता है? क्रेडिट. तो वापस क्रेडिट देंगे तो बढ़ गया ना. हाँ, अभी उसमें टैक्स है ना. तो अभी ये एंट्री वो 3 वाली की एंट्री कैसे होती है? कंबाइन एंट्री हो जाएगी. तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड 27,000 टू शक्ति एड शक्ति एड फिर टीडीएस आएगा. टीडीएस, टीडीएस का ग्रुप क्या रहता है? ड्यूटीज एंड टैक्सेस. ड्यूटीज एंड टैक्सेस. टीडीएस को क्रेडिट. कितना? 1%. 1% कितना होता है? संतोष बोल. हाँ, 10% कितना हो गया? एक जीरो गया. 1% कितना हो गया? और एक जीरो गया. हाँ, दिमाग. और फिर कौन आया? शक्ति. बुक सन्ड्री क्रेडिटर है. फिर उसको बैलेंस कितना आएगा? 26,800 730 आया. दोनों का टोटल 26,000 आया. टोटल 27,000. समझा? तो कंबाइन एंट्री ऐसे लिखते हैं. एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू टीडीएस टू शक्ति. पेमेंट मेड टू सचिन ट्रेडर.
28,6. बोलो टाइप ऑफ वाउचर. पेमेंट डेबिट. डेबिट पेमेंट मेड. पैसे दिए. पहले बैंक चलाओ. बैंक को क्या देंगे? बैंक कम हो गया तो बैंक को क्या देंगे? क्रेडिट. तो डेबिट किसको देंगे? सचिन. बैंक ऑफ इंडिया. अमाउंट 80,000. सचिन अभी कौन हो गया? अभी वी आर गिविंग मनी टू सचिन. मीन्स सचिन इज टेकिंग मनी फ्रॉम अस. हाँ. सन्ड्री क्रेडिटर. तो उसको हमने पैसा दिया तो उसका बैलेंस कम हो गया. सन्ड्री क्रेडिटर विल हैव क्रेडिट बैलेंस. हमने उसको डेबिट दिया यानी उसका बैलेंस कम हो गया. ट्रांसपोर्ट चार्जेस आर पेड. अमाउंट देखो क्या है? 28 पे. ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड क्या है? पेमेंट. डेबिट किसको? ट्रांसपोर्ट चार्जेस. ट्रांसपोर्ट चार्जेस. गीता उधर का लाइट लगा. ऐश्वर्या मैडम के ऊपर का लाइट लगा. ट्रांसपोर्ट चार्जेस. बाहर से बटन. हाँ. ट्रांसपोर्ट चार्जेस हो गया. अभी क्रेडिट किसको? बैंक ऑफ इंडिया. अमाउंट बोलो. अमाउंट ही नहीं दिया है. लिखो कुछ. 10,000. आगे. Check received from Mac Limited. 28 तारीख. Type of voucher receipt. बोलो अभी. एक मिला यानी कैश है या बैंक है? बैंक है. बैंक है ना. बराबर है ना. हाँ. तो बैंक ऑफ इंडिया को डेबिट. एंड क्रेडिट किसको? किसने पैसा दिया? बैंक ने. अमाउंट 2,20,000. नेक्स्ट. हाँ. ऊपर का वो कौन है? मैक कौन है? टेक रिसीव. मैक ने हमको पैसा दिया तो कौन है वो? सन्ड्री डेटर्स. नेक्स्ट. चेक रिसीव्ड फ्रॉम महेश कॉर्पोरेशन. रिसीट पेमेंट क्या है? रिसीट. टाइप ऑफ वाउचर. डेट वाला 28/6. हाँ. फिर टेक रिसीव्ड यानी बैंक को डेबिट. बैंक बढ़ गया एंड महेश को क्रेडिट. महेश कौन है?
Secondary, हाँ, debtors. महेश ने हमको पैसा दिया. प्री कंसिडरेशन, उसके आगे का तुम्हारे कुछ काम का नहीं है. समझा? इतना समझा? अभी कल इसको प्रैक्टिकल करना है. तो होप एवरीथिंग इज अंडरस्टूड. Path, any doubt you have? No doubt. So tomorrow dot 4:30 you will sit for this practical, and tomorrow you have to finish this. Okay? नहीं तो आज भी तुम कर सकते हो. कल तक कंप्लीट करना है. Day after tomorrow I will take how to do the checking of it. Day after tomorrow हमको checking करना है. So now I will stop this sharing. I'll stop recording. And bye bye for now. See you. Stay safe. Bye bye.